Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to YourPedia Education once again. So today is 9 p.m. और आज हम बात करने वाले हैं for civil engineering. So I have 5 questions. No, there are plenty of questions and out of those I have picked 5 questions from entire civil engineering that you should be able to solve अगर आपने prepare किया है for this upcoming GATE 2022 for civil engineering. Remember, this is for civil engineering, not for environmental sciences. So, इसके अंदर RCC भी हो सकता है. It can be soil also. It can be anything. So we need to prepare very well. आपको क्या करना है? आप जो आपकी पढ़ाई करते हैं वो आप करते रहें. Evening में रात को 9 बजे आएं. Try to solve the question that I bring in front of you. The questions will be of varying level. It can be moderate, it can be easy, and it can be tough. We don't know. Okay. Most of the questions are from our micro-module itself. Okay, so the questions are really good. Plus, I've also selected a few questions from NPTEL assignments also. So this lecture, I guess, will be useful for you guys. So please sit with a calci. Okay, a calculator is a must. Please sit with a calculator. So before we go ahead, let me give you a brief introduction about myself. This is a brief about myself, what I have been doing and what is my profile and all. Okay, so let us go now. So basically, this is our first question. Okay, this is our first question. Let me just on this stuff so that we are able to see it. Okay, now you'll be able to see it very well. So this is the first question for GATE 2022, and yes, I have kept it a bit different. इसमें मैंने आपसे पूछा है in working stress method. Okay, in working stress method, it is not limit state method. Working stress method का question है. क्या दिया है हमें? In working stress method, a singly reinforced concrete beam. It is saying a singly reinforced concrete beam जिसका width है 200 mm and 350 mm in effective depth. Width कितना है? 200 mm दिया है. Effective depth is given as 350 mm. Is loaded such that the stress in steel and concrete are restricted to 170 and 7 newtons per mm square. Okay. If the steel used in reinforcing zone is 804 mm square, the moment of resistance for the beam would be effective span is 6 meter and the modular ratio is 18. Modular ratio M is equal to 18. Consider this to be a part of your GATE examination. Consider this to be a part of your GATE examination and take 3 minutes. Okay, just 3 minutes. Try to solve this A, B, C, D. What answer you are getting? Try to solve it. Let's try to solve it in 3 minutes. You'll have a maximum of 3 minutes. So please solve it. Let me see if I can add a clock here. Okay. चलो सभी करेंगे. In working stress method, a singly reinforced concrete beam. So थोड़ा सा, let me just keep it that side. Okay. So in here, I have this. Width is given as 200 mm. And effective depth is given as 350 mm. Okay, width हमें दिया है 200, effective depth दिया है 300. Is loaded such that the stresses in steel. इसका stress diagram कैसा बनेगा?
be like this. Okay, stress diagram will be perfectly linear. Parabolic नहीं होगा क्योंकि parabolic आपका बनता है in case of LSM. This stress will be sigma st by m. Okay, sorry यहाँ पे नहीं. This will be sigma CBC. The stress here will be, this is steel, so the stress is sigma st by m, and this area we write as MAST. So moment of resistance निकालने के लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या आता है? फर्स्ट इज टू फाइंड XA. ओके, पहला क्या एक्सप्रेशन आता है? टू फाइंड actual depth of neutral axis. It is to find the actual depth of neutral axis. Now actual depth of neutral axis कैसे निकलती है? By equating moment of area from both the sides of neutral axis. Okay, मान लो कि ये हमारे लिए न्यूट्रल एक्सिस है. Let's say कि this is XA. Okay, this is XA. ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये X है. अब XA कैसे निकलेगा? B into XA, ये एरिया हो गया, ऊपर वाला एरिया विड्थ into XA into इसका मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इज दिस. ओके, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील. सिंस हम लोग ये मानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो स्टील है, दैट इज द ओनली पोर्शन दैट विल बी टेक स्ट्रेस. नीचे का कंक्रीट बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेता. तो यहां पे क्या आ जाएगा? MAST into D minus XA. Just let me just solve it out. This is 200 into XA square by 2. That is equal to, model ratio is 18. AST हमें दिया है 804. Effective width is 350 minus XA. यानी अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं, दिस विल बी 100 XA square. This is equal to 14472 into 350 minus XA. Just solve this expression, आपको मिल जाएगा what is the value of XA. Alright, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी. तो यहां से I am going to calculate what is the value of XA. One 164.04 mm. 164.04 mm. This is your calculator. Let me just show you. इस तरीके से ये आंसर आएगा. Okay? 164. Correct. 164. Very good. XA का वैल्यू हमारे पास में आ गया. What is step 2? Step 2. Step 2 is to find XC. XC is what? Critical depth of neutral axis. अब XC का बड़ा ही स्टैंडर्ड सा एक फॉर्मूला है. This XC is equal to KD, where K is neutral axis depth factor. Okay, this is neutral axis depth factor. तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं. देखो, K equal to neutral axis depth factor. This is equal to M. This is going to be sigma CBC. M sigma CBC upon sigma ST plus M sigma CBC. तो यहाँ पे हम लोग XC का वैल्यू निकाल सकते हैं. This into D भी रहेगा. D में आउट हो गया. M is 18. Okay, what is sigma CBC? आपको sigma CBC यहाँ पे दिखाई देगा. This value is sigma CBC and this is sigma ST. Okay, stresses in concrete under bending compression. This is
stresses, direct stresses under steel in tension. This is sigma st, this is sigma cbc. ओके, ये चीज है। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 18 into 7 divided by 170 plus into effective depth which is 350 mm. तो यहां से हमारे पास xc निकल आएगा। ये आ रहा है हमारे पास में 148.98 mm, 148.98 mm। अब आता है हमारे पास में स्टेप 3। स्टेप 3 आपने x से निकाल लिया, x से निकाल लिया। स्टेप 3 is to compare x and xc। तो यहां क्या दिख रहा है, this xa is greater than xc, that means our section is over reinforced। ओके, सेक्शन कैसा है हमारे लिए, ओवर reinforced। For over reinforced section the stresses in concrete are equal to sigma cbc, यानी कंक्रीट पहले पहुंच जाएगा अपने स्ट्रेस लेवल तक, और स्टील के अंदर जो स्ट्रेसेस रहेंगे वो परमिसिबल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, वो परमिसिबल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब यहां पे चलते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस स्टफ, एक्स ए का वैल्यू लिख लो 164.04, यहां पे लिख लेते हैं एक्स ए 164.04 mm, एक्स सी का जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू 148.98 mm। ओके, नाउ अब हम लोग निकालेंगे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो इस फिगर के लिए समझना है आपको, दिस इज 200 mm, यहां से लेके यहां तक इट इज 350 mm। लेट्स से कि दिस डेप्थ इज XA। ओके, ऐसा कुछ है। दिस इज सिग्मा CBC। ओके, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा ST बाय M। ऐसा ही लिखते हैं इसी तरीके से, सिग्मा ST बाय M। अब यहां पे द स्ट्रेसेस इन दिस स्टील आर नॉट, लेट्स से ये परमिसिबल तक नहीं जा रहा है। परमिसिबल तक कौन जा रहा है, कंक्रीट। तो कंक्रीट का जो परमिसिबल स्ट्रेस है दैट इज ओनली 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम सिंपली यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब देखो यहां पे हमारा एक लगेगा कंप्रेसिव फोर्स और एक लगेगा यहां से टेंसाइल फोर्स। ओके, कितना डिस्टेंस होगा, ये XA है तो इसके लिए सीधी से ये डिस्टेंस कितना आएगा, this will be XA by 3, so the lever arm will be D minus XA by 3। lever arm will be D minus XA by 3, करेक्ट। ये हमारे लिए lever arm आया। अब देखो फोर्स किसके बराबर आएगा, this is equal to average stress into corresponding area into lever arm, this is D minus XA by 3। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग लाइक इतना स्पीड में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग जो आपने पढ़ रखा है। अब फोर्स एवरेज स्ट्रेस कितना है, एवरेज स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 0 by 2 into व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया। इतने स्ट्रेस के लिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है। ओके, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, तो एवरेज स्ट्रेस कितना है, 7 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया इज
200 XA into liver arm is 350 minus XA by 3. तो अब सिंपल सा बस क्या करेंगे, इसके अंदर we'll just plug in the values. So this is 7 plus 0 by 2 into 200 into XA का वैल्यू हमारे पास में इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, we'll get the moment of resistance. This comes out to be 33.91 kilonewton meter. You can solve it. Okay, 33.91 kilonewton meter. तो देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ मैच कर रहा है. 33.9 ऑप्शन ए. तो ये हमारा आंसर है. ओके, 33.9. एक्स को एक्स लिमिट पे इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज WSM, हम LSM की बात नहीं कर रहे. LSM में आप XU को XU लिमिट से रिप्लेस करते हैं. WSM में थ्योरी इज अ बिट डिफरेंट. WSM में इट इज डिफरेंट. ओके, सो आई गेस दिस वाज क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं. अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन है ये. फॉर अ व्हीकल नेगोशिएटिंग For a vehicle negotiating a curve, the centrifugal force P is. अब centrifugal force किसके बराबर होता है? Centrifugal force. This is equal to mv square by r. Now what are these stuff? देखो, मान लो कि there is a thread and यहाँ पे there is a ball. Okay. अब इसको सेंटर से वी आर जस्ट रोटेटिंग. इसको अगर सेंटर से आप रोटेट करोगे तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट इज दिस वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, और इसका जो मास है m, एंड दिस फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड, जिसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा है. सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब ये कैसे एक्ट करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द व्हीकल. ओके, वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg लिख सकते हैं. फाइन. मास को क्या लिखोगे? w by g. तो यहां पे इसको चेंज कर दो, मास को w by g into v square by r. w by g into v square by r. तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द व्हीकल, फर्स्ट ऑप्शन सही है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल गलत है. सेकंड तो नहीं है. अब सेकंड नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो आंसर इज ऑप्शन बी. थर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्व, सही दे रखा. सो आंसर इज ऑप्शन बी. गेट के लायक क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता होना चाहिए, प्लस जब सेंट्रीफ्यूगल आ रहा है तो आपको सेंट्रीपिटल भी पता होना चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, so go through this. नेक्स्ट आते हैं. ओके, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल. सॉइल का क्वेश्चन है. A soil sample was obtained from point A in a submerged clay layer. Okay.
submerged clay layer, ये वाला submerged clay layer कुछ होगा. It was determined that it had a water content of 54%. इस क्ले का जो वाटर कंटेंट है that was 54%, very high water content. और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 2.78. The effective vertical stress at point A. A point पर हमें बताना है what is the effective vertical stress. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आसान है. वर्टिकल स्ट्रेस बताने के लिए A पर हमें क्या चाहिए, मैं सबसे पहले लिख लेता हूं व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस एट A. दिस विल बी इक्वल टू 25 into gamma W plus 15 into gamma saturated. Okay, 15 into gamma saturated. और पोर वाटर प्रेशर एट A किसके बराबर आएगा 25 gamma W plus 15 gamma W. सॉइल का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. Effective stress at A, this is equal to total stress at A minus पोर वाटर प्रेशर at A. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 15 gamma saturated minus 15 gamma W. तो effective stress at A, this comes out to be 15 gamma submerged. Okay, तो एक बार के लिए let us calculate what is the value of gamma saturated. किसके बराबर होता है gamma saturated equal to gamma W G plus ES upon 1 plus E. Now since the soil is saturated, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ES equal to WG upon 1 plus WG by S. And since saturation is equal to 1, saturation किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं. gamma W is 9.81, specific gravity is 2.78, W दिया है हमें 54% upon 1 plus 0.54 into 2.78. So इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, हमें मिल जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा सैचुरेटेड. आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करें प्लीज सभी इसको. क्या है 16.79 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. कन्वेंशनली हमारी वैल्यू गामा सैचुरेटेड की इतनी कम नहीं आती है. अप्रोक्सीमेटली गामा सैचुरेटेड जो होता है वो इन द रेंज ऑफ 19 to 20 के आसपास रहता है. लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट वंस अगेन. ठीक है, ये आ रहा है गामा सैचुरेटेड 16.79. तो गामा सबमर्ज्ड कितना आएगा 16.79 minus 9.81. This is 6.98 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. लगा दो यहाँ पे कितना आएगा 50 into 6.98, that is 104.72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यानी रफली आंसर कितना आ रहा है हमारा 105 किलो पास्कल्स. ओके, 105 किलो पास्कल्स. सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, 105 किलो पास्कल्स. तो एग्जाम में आएगा यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर टाइमिंग्स आल्सो, क्योंकि यू विल नॉट गेट मोर देन 3 or 3.5 minutes टू सॉल्व दिस एनी क्वेश्चन. ओके, चलिए, सो लेट्स गो अहेड. हाँ, दिस इज नाइस एंड अ बिट टफ क्वेश्चन, स्लाइटली टफ है. ट्राई करें इस क्वेश्चन को प्लीज.
चलिए, सो दिस इज समथिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गेट के लेवल पे. इट इज समथिंग वेरी नाइस. सो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? A soil entirely made up of clean sand has dry unit weight of 17.5. यानी गामा ड्राई हमें दिया है 17.5 किलो न्यूटन per meter cube. Moisture content is 4% and the specific gravity of solids is 2.65. यानी water content हमें दिया है 4% और specific gravity of solids is 2.65. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ध्यान से देखना है. The weight of water in kilonewton that must be added to 1 cubic meter of soil. Total volume of soil कितना दिया है? 1 meter cube of soil to attain a 95% degree of saturation is. Okay, to attain 95% degree of saturation. Okay. पहले जो भी सिचुएशन दे रखा था, पहले आपको ड्राई डेंसिटी दे रखा है विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 4%. आपको ये बताना है कि इस सॉइल के अंदर एक्स्ट्रा कितना पानी मिला है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है 95%. और टोटल वॉल्यूम आपको दिया है 1 मीटर क्यूब. ओके, टोटल वाटर कितना दिया है, टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 1 मीटर क्यूब. अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे मैनिपुलेशंस लगेंगे, देखना है यहाँ पे हाउ वी डू दैट. देखो, सबसे पहले तो ड्राई दे रखा है, हम क्या कर सकते हैं, गामा डी इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस सी. तो यहां से एक बार वॉइड रेशियो को निकाल देते हैं. ओके, यानी इसके लिए मैं निकालना चाह रहा हूं कि इस सिचुएशन के लिए व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन. ओके, सो दिस इज 17.5 9.81 इनटू कैपिटल जी इज 2.65 अपॉन 1 प्लस ई. तो यहां से आपको E का एक्सप्रेशन कुछ आना चाहिए. .485. ओके, वाइड रेशियो में निकल गया 0.485. अब देखो यहां पे एक चीज समझना, अगर आपको वाटर कंटेंट दे रखा है 4% और यहां पे वाटर कंटेंट हमें नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है कि यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा 95%. तो देखो, I can apply this expression to actually find what will be the water content at 95% degree of saturation. E हमारे पास में आ गया 0.485, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है 0.95, W into G is 2.65. तो यहां से हमारे पास में वाटर कंटेंट आ जाएगा. देखना कितना आएगा, .1738. ओके, यानी समझो इनिशियली द वाटर कंटेंट वाज 4%. ओके, और बाद में वाटर कंटेंट कितना हो गया 17.38%. 0.1738 है ना, इसका मतलब कितना है, इट इज 17.38%. रफली इट इज 17.38%. तो जब वाटर कंटेंट 4% था और बाद में वो वाटर कंटेंट 17.38 हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वाटर ऐड किया है. ओके, सम वाटर हैज बीन एडेड. हमें यही बताना है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा कितना पानी ऐड किया जाए, एक्स्ट्रा कितना वाटर ऐड किया जाए इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन. नाउ हियर इज द ड्रिल. इस जगह पर वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स. पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, द एंटायर कॉन्सेप्ट is hidden in the fact that weight of solids will remain constant. Weight of solid पहले भी constant रहेंगे, पानी डालने के बाद में भी constant रहेंगे. ओके, तो हमारे लिए the weight of solids will remain constant. So the entire concept lies in this line. The weight of solid, or let's say volume of solid, will remain constant even after adding water. Even after adding water. तो अगर आपको किसी तरीके से weight of solids निकल जाए, ओके,
वेट ऑफ सॉलिड्स निकल जाए तब हम वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे कि एडिशनल कितना डालना होगा। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में आगे क्या करेंगे। नाउ हियर we will use this data also. The total volume is 1 meter cube. This total volume is equal to volume of voids plus volume of solids. Now let me do some manipulation. I am taking volume of solids as common. हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा, इसको I can write V upon Vs. VV upon Vs is void ratio plus 1. तो क्या मैं यहां से Vs का वैल्यू निकाल सकता हूं V upon 1 plus C. यहां से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल सकते हैं ना। दिस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इज 1 प्लस 0.485। देखो हम लोग कहीं पर भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, 0.673 मीटर, ये आ रहा है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, अब अगर आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, क्या हम थोड़ा सा दिमाग लगा के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से वेट ऑफ सॉलिड नहीं निकाल सकते? 100% निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? सी दिस, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू गामा डब्ल्यू। तो G का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? द वैल्यू ऑफ G इज 2.65। वेट ऑफ सॉलिड हमें निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 0.673 इंटू 9.81। तो यहां से वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना आ जाएगा? 17.49 kilonewton. Okay, now considering this fact कि वेट ऑफ सॉलिड्स या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कभी भी चेंज नहीं होगा, ओके, किसी एट एनी कॉस्ट इट विल नॉट चेंज, सो वेट ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज फिक्स्ड एट 17.49 किलोन्यूटन हमेशा। अब आ जाओ यहां पे, इस जगह पर लिखते हैं कि हमें वेट ऑफ सॉलिड्स मिल गया 17.49 kilonewton. Let us just round it off to 17.5 kilonewton. Weight of solid कितना आ गया? 17.5 kilonewton. अब क्या हम ये नहीं कर सकते? W1 जब 4% था तब इसके लिए पानी कितना था निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ पे weight of water divided by weight of solid, तो 0.04 weight of water 1 divided by weight of solids is 17.5. So this is 0.7 kilonewton. पहला कितना है? 0.7 kilonewton। जब मॉइस्चर कंटेंट या जब वाटर कंटेंट हमारा 4% था तब उसमें पानी कितना मिला हुआ था? 0.7 kilonewton। बाद में जब वाटर कंटेंट 17.38% हो गया है तब हम निकाल लेंगे कि इसके अंदर वाटर कंटेंट कितना होगा। तो देखो यहां पे when water content is 17.38%, this is equal to weight of water 2 divided by weight of solid, this is 0.1738 divided by 17.5, तो ये कितना आएगा? 3.04 किलोन्यूटन। ओके, 3.04 किलोन्यूटन। अब हमें बताना क्या है? देखो पूरे क्वेश्चन में क्रक्स क्या है, क्या पूछा है हमसे? द वेट ऑफ द वाटर दैट मस्ट बी एडेड, ओके, टू cubic meter of soil to attain this is, okay, weight of water किसमें? किलोमीटर में हमें बताना है कितना पहले था। ओके ओके, सो पहले था 0.7 किलो न्यूटन, बाद में और 3.04,
तो एडिशनल कितना डालना पड़ा है? Additional water added in kilonewton is 3.04 minus 0.7, तो ये आ जाएगा 2.34 किलोन्यूटन. दिस इज 2.34 किलोन्यूटन. तो आंसर कितना है आपका? योर आंसर इज 2.34 किलोन्यूटन. दिस इज ऑप्शन सी. ओके, 2.34 हमारा आंसर इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज हमने जस्ट ये अप्रोक्सीमेशन लिया था ना कि 17.49 को वी मेड इट 17.5, तो रफली हमारा आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन सी. ओके, आंसर इज ऑप्शन सी. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट आते हैं. ओके, सो आई सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रैफिक इंजीनियरिंग. ट्रैफिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है. प्लीज सॉल्व इट. देखो हमें क्या दिया है? द ट्रैफिक फ्लो इक्वेशन फॉर अ सेक्शन ऑफ रोड इज दिस. दिस u is 80 minus 0.7 k. Okay, 80 minus 0.7 k, where u is the speed in kilometer per hour and k is the density in vehicles per kilometer. ठीक है, u हमारे लिए स्पीड है और k is density in vehicles per kilometer. The maximum expected flow. Okay, हमें बताना है what is the maximum expected flow, यानी q max का वैल्यू बताना है. maximum expected flow. देखो ये क्वेश्चन है आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है. देखते हैं इसको. यस राजा, लेट अस सी. क्या करेंगे? q इक्वल टू k इंटू u होता है. u की जगह रख देंगे 80 minus 0.7 k. So this will become 80k minus 0.7 k square. ये q आ गया. अब हमें क्या चाहिए? q max चाहिए. So what we will do? dq by dk equal to 0. इसको k के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर देखेंगे q कहां पे 0 हो रहा है. तो 0, this is equal to, okay, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? 80 minus 2 into 0.7 k. Now this term will become equal to 0, that is 80 minus 1.4 k. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 57.14 व्हीकल पर किलोमीटर. 57.14 व्हीकल पर किलोमीटर. अब जब हमारे पास में k का वैल्यू आ गया है, so can we calculate directly this q? इट इज सिंपल ना. k का वैल्यू अगर मेरे पास है तो मैं इसको सीधा या तो इसके अंदर रख दूं. I will get what? I will get q max only directly. So let's do that. q max कितना आ जाएगा? 80 into k का वैल्यू है 57.14 minus 0.7 into 57.14 का whole square. So solving this, we'll get the value of q max. This is 2285.71 व्हीकल पर आवर. याद रखिए
Q max किसका यूनिट होता है? व्हीकल पर आवर. 2285. That's good. Correct. So आपको समझ में आया होगा. अब गेट के अंदर आपका माइंड इसी तरीके से काम करना चाहिए. You should have that much of practice कि पहला क्वेश्चन आरसीसी आया, सेकंड वन विल कम सॉइल, तीसरा हो सकता है फ्लूइड आ जाए, चौथा ओसीएफ, पांचवा सोम से क्वेश्चन आ सकते हैं, और सिक्स्थ आपका ट्रांसपोर्टेशन, फिर सर्वे, फिर हाइड्रोलॉजी, फिर इरिगेशन. देयर आर प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. अब ये अच्छी चीज है कि गेट में मैथ्स और एप्टीट्यूड को अलग रखा जाता है. ओके, और समटाइम्स मैथ्स भी टेक्निकल साथ में ही क्लब कर देते हैं. ओके, चलिए. सो दिस इज इट गाइस, this was it for today. Or let me give you, on Monday at 2 p.m. we'll be completely studying soil mechanics. Complete soil mechanics, पूरा का पूरा soil mechanics in just 5 or 6 hours of duration. complete soil mechanics को हम करने वाले हैं. Okay, इसमें क्वेश्चंस रहेंगे फॉर NPTEL, जिसमें असाइनमेंट यू विल बी डाउनलोडिंग इट अर्लियर. पहले ही आप असाइनमेंट डाउनलोड करके रखेंगे, आपके पास रखेंगे, और उसको मैं पूरा का पूरा आपको सॉल्व करूंगा यहाँ पे. ओके, सो we'll meet in the next class. I hope this was helpful for you. So we'll meet in the next session, that is tomorrow. Tomorrow we'll be solving questions for environmental sciences. So till then, everyone take care. Bye bye. Good night.